I hope it is started. Yeah. Now listen here. So what we want to do, Yes, we sir. want to find out the square root of 25.50. Okay. So your first job, listen here. What we are finding out? We are finding out the square root of something, right? So your first thing is to identify the function. क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना. So your function should be under root x. Because हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं. That's why it is square root of x. Suppose यहाँ पे क्यूब रूट होता तो what will be my f of x? It will be cube root of x. Suppose अगर मुझे 25.15 का क्यूब निकालना है. Suppose if I want to find out 25.15 का क्यूब. In that case, what will be your function? X cube. X cube, right? Are you getting the thing? So according Yes, to sir. the question, we are going to decide our f of x. सबको f of x समझ में आया? No doubt. Yes, sir. Yes, sir. Now another thing is, listen here. आपको if you remember Taylor's theorem में दो टर्म चाहिए होते हैं, एक a और एक h. Do you remember? Then only we can apply Taylor's theorem. Yes. Right. So here, listen, 25 का square root you can easily find out. Right? And 0.15 में है ना. Yes, yes. तो कैन आई राइट डाउन ये जो 25.15 है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 25 25 प्लस plus 0.15. 0.15. प्लस 0.15. कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. Yeah. That means here this will give me two terms. This should be my a and this should be my h. Getting the thing? So my next job is I want to identify what is my a and what is my h. So take a is equal to 25 and h is equal to 50. Now you must think like this कि अरे सर ने a25 क्यों लिया और h15 क्यों लिया? Okay, that should be comes in your Hello, mind. sir. Okay, तो listen here. यहाँ पे ये these are called as the problems of approximation. ये approximations वाले problem है, ध्यान दो. तो यहाँ पे जो नंबर छोटा होता है, याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हिंट. जो नंबर छोटा होगा, छोटा मीन्स इन द टर्म्स ऑफ लाइक हियर यू आर हैविंग a is 25 and h is 0.15. Which one is smaller? 0.15, right? 0.15. Whatever is smaller number that you are supposed to take as h. Okay, are you getting how to take h? जो नंबर sir. छोटा असेल, लक्ष द्या, जो नंबर छोटा असेल त्याला h घ्यायचं. जो नंबर छोटा होगा उसको h लेना है और जो बड़ा होगा उसको a लेना है. I will tell you why we are taking a as 25, why we are taking h as equal to 15. I'll tell you that. Okay. So listen here. Now, if I write down f of a plus h, does that mean that it is f of 25 plus 0.15? Or can I say like this? f of a plus h. If क्या देखो, f क्या है मेरा? Root x है ना? Can you tell me what is my f of a plus h then? Root में a plus a. Is it root a plus h? Root. Is it? H. Is it root of a plus h? Yes, yes. But what is my Yes, a? sir. What is my a? It's 25. 25. 25. H is 0.15. 0.15. Point. Yeah. So that means what I'm trying to tell you is, जब आप इस f of a plus h का expansion करने वाले, that means actually you are expanding this. You are finding out the value for 25.15. Are you getting the idea? Okay. So by Taylor's theorem, can anyone tell me the expansion of f of a plus h in powers of h? F F of of A. a. F of a. F F A plus A plus plus of F a plus plus A F dash H A dash into x L square plus upon plus factorial plus double dash H A. plus factorial F double dash or we will write down one more term. plus H cube ऐसे आएगा ना? by 3 factorial F triple dash. Now fine. Now listen. I will tell you the reason कि मैंने h 0.15 क्यों लिया.
और उसको h के पावर में एक्सपांड करना है। लिसन हियर, इसकी वैल्यू h की वैल्यू 0.15 है ना। कैन यू टेल मी h स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी या बड़ी हो जाए? मींस 0.15 का जब स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू बढ़ने वाली है कम होने वाली है? और छोटी होगी। कम होने वाली है। होगी। कम होने वाली है। वो वैल्यू जो कुछ होगी वो आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक 0.225 नो 0.225 0.225 या 0.225। तो वो जो वैल्यू होगी एक्चुअली इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आपका h के पावर लेते जाओगे वो वैल्यू क्या होने वाली है, छोटी छोटी होती जाने वाली है। आर यू गेटिंग द थिंग? और जैसे वो वैल्यू छोटी छोटी होती जाएगी आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, आपको मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलने वाली है √25.15 का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझ में आ रहा है? इसलिए हमें क्या करना है, h हमेशा छोटा लेना है। जैसे जैसे उसके पावर बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू और छोटी छोटी होती जाएगी एंड यू आर गोइंग टू गेट the more approximate value of the whatever required result. Okay, so listen here, if I apply the formula on a and h, so am I going to have here f of 25 because a is 25? Are you getting? yes sir Next term is what? Is it 0.15 into f dash of 25? Correct. yes sir Next term is what? 0.15 square upon 2 factorial, that is 2 into f double dash of 25. Are you getting this? yes sir एंड ये बढ़ते जाने वाला है ऐसे। नाउ इसको सॉल्व करना है अगर आपको, सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? वैल्यूज निकालने पड़ेंगे ना आपको, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू एंड सो ऑन। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे। ध्यान दो, जितने ज्यादा टर्म्स लिखोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको। लाइक अभी हमने h स्क्वायर तक लिखा है, फॉर एग्जांपल f डबल डैश। अगर आप ट्रिपल डैश करोगे ट्रिपल डैश और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको। अगर आप रेस टू 4 करोगे और एक्यूरेट वैल्यू मिलती जाएगी आपको। ओके, तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट दिस। So can you tell me what is my f of x? Is it root x? Root Root x x. So what is f of Root x. 25? 5 5. Five. Root 25 होगा ना ये? yes sir Are you getting? Are you getting this? Yes, sir. sir. Now what is next? What is f dash? 1 by 2 root 1 by 2 root x. Yeah, so it Two root will be x. 2 root x. So can you tell me what will be this f dash of 25? Is it 1 by 10? 1 upon 10 0. 1 by 10 0.1. Do one more derivative. इसका और एक डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? वन बाय टू ऐसे ही रखा, x रेज टू 1 by 2 x square 1 by 4 root तो माइनस 1 by 4 x रेज टू माइनस 3 by 2. Is it? Yes or no? yes sir x raised root x Yes, means sir, x raised yes. to minus half ना, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ x रेज टू माइनस 3 by 2 होगा ना। yes sir आगे वाला हाफ और ये माइनस हाफ, माइनस 1 by 4 हो गया। इज इट ओके? yes sir एंड अभी आप यहाँ पे इसमें वैल्यू डालोगे 25, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? Yes, 1/4 और 25 रेज टू 3 by 2 माइनस 3 by 2 ऐसे लिखो। और ये इसको नीचे भी लिख सकते हो। Can I sir say minus it is? 1 by 500 Can I say it is? sir we can write 5 square raised to minus 3 by It is 25 into 5. Is it correct? sir minus 1 upon 500 आ रहा है। yes sir minus 1 upon 500 500. ये कुछ और small value हो जाएगा. That's fine. मैंने This 0.00 value will be more smaller and smaller. Okay. तो ऐसे ये डेरिवेटिव, लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, जितनी ज्यादा डेरिवेटिव लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाला है आपको।
So can I say root of 25.15 is equal to, what is the first value? F of 25 कितना आया? 5. Then next value क्या है? 0.15 into क्या है ये? F dash कितना आया? 0.1. Then next is what? 0.15 का square निकालो चलो. Do you have a calculator? Yes, sir. चलो 0.15 का square निकालो कितना आता है? 0.025. 0.025. 0.025. तो यहाँ पे आएगा 0.0225. 0.0225. करेक्ट. 225. देखो अगर आप कंपेयर करोगे ना h एंड h स्क्वायर को, तो छोटी हो गई ऑल वैल्यू. देखो ये 0.15 थी, ये 0.0225 हो गया, तो और छोटा हो गया. इनटू f डबल डैश 25 कितना है? -1/500. 500 करते हो तो इज इट 0.002? Yes, sir. Yes, 0.002. sir. Yes, yes. So ऐसे आएगा ये. माइनस, ये माइनस है वैल्यू. ये कैलकुलेट कर सकते हो आंसर कितना आएगा? ये देखो ये वैल्यू क्या होगी? ये होगी सर 5.01478. देखो ये होगा 5.0. प्लस ये होगा 0.015. करेक्ट. हाँ सर. ये क्या, ये वैल्यू बता सकते हो? ये नेगेटिव आएगा. देखो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका होना चाहिए 0.0225 इंटू 0.002 डिवाइडेड बाय 0. ये बहुत छोटी आएगी. सर, देखो ये हाँ वैल्यू सर. Yes, sir. 0.000. सर 0.00025. 0.25. 0.225. Yes, sir. ऐसी कुछ तो वैल्यू. टू ऐड ऑल दिस थिंग, इसका आंसर कितना आना चाहिए? देखो 5 प्लस कितना ये? सर इसका अप्रोक्सीमेट आएगा 5.01478. 5.01478. ये सर 5. 5.01478. ये देखो आई एम नॉट सेइंग इट इज एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यस सर अप्रोक्सीमेट. 0 मैं भी बोल रहा हूँ ये 1 approx- 4 5.01478. 5.0149. ऐसे कुछ तो वैल्यू आएगी. देखो Sir, 5.0149. Sir, 78 आ रहा है. इज इट करेक्ट? ऐसे आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर आ रहा है. Yes, sir. हाँ सर आ रहा है. Yes, sir. एंड अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये वैल्यू बहुत 25.15 के नजदीक आएगी. देखो यू कैन चेक आउट, आप चेक कर सकते हो. 25.1496 आ रही है. हाँ, तो 25.149 देखो, दैट मींस इट विल बी वेरी क्लोज टू 25.15. यस सर वेरी क्लोजली. Yes, अब sir. ये अगर और एक वैल्यू लेता ना मैं, अगर थर्ड डेरिवेटिव भी लेता ना तो और नजदीक आ जाता. तो एज आई टोल्ड यू, जितनी ज्यादा टर्म्स लोगे इस एक्सपेंशन में, मोर एक्यूरेट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. सर मैंने थर्ड डेरिवेटिव लिया था तो उससे आ गया ये. एग्जैक्टली आया. एग्जैक्टली आ गया सर. वेरी गुड. ओके, वही है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. जितने ज्यादा करो लिखोगे उतना ज्यादा. F3 लिया तो आ गया सर. एग्जैक्टली आया वो 225. ओके, आई होप ये एप्लीकेशन समझ में आया सबको. ये लाइक देखो, जब आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. ओके, तो अगर आप, मैंने आपको बोला रूट 25.15 निकालो, आप इजीली निकाल पाओगे ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा. देखो 5.014 या 5.014 आ जाएगा आंसर. बट अगर विदाउट कैलकुलेटर अगर आपको ये सॉल्व करना है, देन यू, दिस इज द मेथड दैट यू कैन अप्लाई. आर यू गेटिंग? Is it right? चलो write it down all of you. प्रॉब्लम समझ में आया क्या? वापस बताओ एक बार. अरे कळालंय का परत सांगू?
एकदा कळालं? समजलं एकदा परत समजलं सर. समजलं सर. तर एकदा Okay, all of समजलं you सर. listen here. Okay, ध्यान दो पहले, मैं वापस बताता हूँ एक बार. Listen here. पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना था? रूट निकालना था 25.15 का. तो ये हिंट देता है कि आपको फंक्शन क्या लेना है. तो सिंस वी आर हैविंग स्क्वायर रूट, मैंने फंक्शन ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ये स्टेप समझ में आई सबको? नो डाउट. नो डाउट. ओके, नेक्स्ट स्टेप. तो इसमें क्या किया मैंने, ये जो 25.15 है इसको मैंने स्प्लिट किया. कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं इसको? ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ ना 25 एंड 0.15. तो मैंने एक टर्म को मैंने ए ले लिया और दूसरे टर्म को ले लिया मैंने एच. ओके, अभी ए एंड एच चूज करते वक्त कैसे लेना है? एच हमेशा ये जो वैल्यू है ये स्मॉलर वैल्यू लेनी है आपको. जो कुछ भी 25 एंड 0.15 में जो स्मॉलर वैल्यू है दैट विल बी योर एच. ओके, क्लियर विद दिस स्टेप ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, यस सर. यस सर. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए लिखा है. तो एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे दिखेगा? एफ क्या कर रहा है देखो, स्क्वायर रूट जो उसके अंदर होगा उसका स्क्वायर रूट लेगा. तो एफ ऑफ ए प्लस क्या क्या होगा? रूट ऑफ ए प्लस एच होगा. बट हमने ए क्या लिया है 25 और एच क्या लिया 0.15. दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा हमारा वो होगा रूट 25.15 जो हमें चाहिए. आर यू गेटिंग? और फिर मैंने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस एच पे टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया. अप्लाई करते वक्त अब ये भी समझ में आना चाहिए आपको, किसको अंदर लेना है किसको बाहर लेना है. अब यहाँ पे तो कोई लिखा नहीं था एच के पावर में लिखो. ओके तो किसके पावर में लिखना है आपको? जो वैल्यू स्मॉलर ली थी उसके पावर में लिखना है. वो उसका एडवांटेज क्या होता है याद रखो, जब भी आप स्मॉलर पावर के और पावर लेते जाते हो वो और स्मॉलर स्मॉलर होते जाता है. एंड जितना वो स्मॉलर होते जाएगा आपका आंसर उतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आएगा. Okay, that's why I'm taking in the powers of h. Is that clear, this part? यस सर. Okay, and then the remaining part is mechanical. Simply I'm putting the value of a and h there and वो मैंने calculate कर दिया and substitute कर दिया. Is it okay? यस सर. चलो right. सर बोलो बोलो. हमें एच की वैल्यू हमेशा स्मॉल ही क्यों लेनी चाहिए? वही तो उन्हें बोला ना मैंने, h की वैल्यू स्मॉल क्यों लेनी है? जैसे उसका पावर लेते जाओगे ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0.1 है, 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो और छोटा होगा वो. उसका क्यूब लूंगा तो और छोटा होगा. उसका रेस्ट टू 4 लूंगा और छोटा हो जाएगा. छोटा होने का फायदा क्या? उतनी वैल्यू आपकी कम 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 होती जाएगी ना. लाइक फॉर एग्जांपल देखो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो ये वैल्यू है आपकी 5 है ना. तो इसका जो आंसर है रूट, या मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बोला इसका आंसर क्या होगा बताओ. तो इसका आंसर श्योरली 5 पॉइंट समथिंग कुछ तो होना चाहिए. ये तो समझ में आ रहा है सबको? यस सर. और बट ये आगे देखो 0.15 है, छोटी वैल्यू है ना आगे वाली भी. तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कुछ तो 0.1 वगैरह ऐसा होना चाहिए, ऐसे लग रहा है हमें. दैट मीन ये वैल्यू बहुत छोटी है देखो आगे वाली. दैट मीन इसके आगे वाली जो वैल्यू है ये वाली, दिस इज वेरी स्मॉल. आर यू गेटिंग? and this will happen only when you take going to take h as very small. Are you getting? यस सर. तो दो चीजें याद रखनी है इस प्रॉब्लम में आपको. पहले तो h हमेशा स्मॉलर लेना है एंड सेकंड थिंग h के पावर में ही एक्सपांड करना है. Finish? यस सर. नो सर. नेक्स्ट
Finish everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. Now listen here. The next one actually is I'm not going to do it, okay? But I'm going to give you that for that as an exercise. I hope you all can do it. It is exactly same. Suppose if I ask you to find out root of 9.12, can you do that? Yes, sir. इसका आंसर निकालना है आपको with using Taylor's theorem. Okay. So I'll just give you some hint. Can you tell me what is your function here? Root 9 x. plus क्या 1 लोगे? under root. रूट एक्स Square root ही लोगे. X. Square root ही लोगे ना, right? Then second thing, can you tell me what is your a? 9 9. 9. 9. What is your h? point 0.12. 0.12. And then you just write down the expansion of f of a plus h. f of a plus h का expansion लिख दो. किसके पावर में लिखोगे? a क्या h के पावर में? H K. h के power. h के पावर में. तो it will be f of a h into f dash of a plus h square. जितने ज्यादा टर्म्स लिखोगे यहाँ पे उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा आपको. Can you do that? Yes, sir. Yes. इसका आंसर क्या आएगा? What do you think? क्या आ सकता है आंसर? root 3.016. 3 point something. Something like 3.0. 3.0. ऐसे अप्रोक्सीमेटली ले रहा. दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. ऐसे कुछ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आनी चाहिए. कैन यू डू इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और एक Yes. एग्जांपल देता हूं मैं, नॉट इन द सिग्नल काइंड. यहाँ पे आपको निकालना है साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट. कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे कैसे करोगे? ये भी ट्राई करना है आपको. Ma'am, A will be 30 and फंक्शन minute क्या will be लोगे? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज योर फंक्शन? A is equal to 30. Sin X. Sin X. साइन ऑफ ए Sin प्लस X. एच. x क्या होगा? sin h. या तो आपका फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे साइन एक्स. बिकॉज हमें क्या करना है? किसी नंबर का साइन निकालना है ना. यहाँ पे क्या था? किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था हमें, इसलिए हमने स्क्वायर रूट फंक्शन ले लिया. हियर व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, हमें साइन निकालना है ना, साइन एंगल. दैट मीन एफ ऑफ एक्स होगा साइन एक्स. आर यू गेटिंग दिस फर्स्ट वन? Yes, sir. Yes, sir. ए क्या होगा? 30 degree. 30 डिग्री. एंड व्हाट इज योर एच हियर? 30 minute. मिनट. डू यू नो द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट? एनीवन? 30 upon 1 by सर 1/60. 1 by 60. 1 minute is equal to 1 by 60 degree. 1 radian. 1 radian is equal to 57 degree, sir. Half degree, sir. हाफ डिग्री. तो प्लीज कैन आई से Yes, sir. Half degree. 0.5. तो दिस इज इक्वल टू 0.5 डिग्री. दैट इज हाफ डिग्री. Is 30 by 60 ना. So 1 minute, can I say 1 minute is equal to 1 degree. 1 by 60 ना. Yes, sir. 1/60. yes, sir. yes. This is the relation. That means 30 minutes जब लोगे तो यहाँ पे 30 by 60 आ जाएगा. That's why it is half degree. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And अगर इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा तो आगे इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 1 डिग्री इज इक्वल टू Pi by 180. 1 by pi. 1 by pi by नहीं
1 by 1 सर पाई बाय 180 होगा ना? हाँ पाई बाय 1 पाई बाय 30 degree is equal to सर 1 degree is equals to 60 minutes होगा. चलो 1 degree is equal to 60 minutes ना. में चेक एक्चुअली करना चाहिए कि नहीं रेडियन देखना पड़ेगा आपको. ये मिड डिग्री में हुआ तो भी चलेगा आई गेस. पाई बाय 180 रेडियन तो 30 डिग्री के इक्वल टू 30 या पाई बाय 6 करेक्ट. तो ये आपको कितना आएगा पाई बाय 6 ना. तो यस ये सर. कितना आ जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 360. ये हाफ पाई बाय 360 आएगा कि ये. यस सर. ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये रेडियन में करके करना पड़ेगा या एक मिनट नहीं दिया. ओके ट्राई करो इसमें. अभी आप रेडियन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करो. दैट मींस ए को ए लेना है आपको पाई बाय 6 एंड एच लेना है पाई बाय 360. ओके एंड देन यू ट्राई इट. इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ आपको. आंसर है इसका 0.50735. 0.507. You just try out. I'll just take out again. रेडियन में करके देखो ये आंसर आता है क्या. Else we will do it by using degree also. We have to. I have not solved this problem. I'll just take it out. Okay. But you just try it. I think 0.9 square root of 9.12 you can easily do it. ये तो आ जाएगा easily. Even you try for this. Else we'll do it in the next class. Fine. But are you getting the idea for both the example how we are going to do that? Yes, sir. Yes sir. That is about Taylor's Yes, sir. theorem. Any doubt? सर थर्ड वाला. हाँ बोलो ना. बोलो. Should I go ahead? Yes sir. Okay, the next Yes, topic sir. that we are going to see is this is the last topic from the first unit. It's indeterminate form. It's an easy topic. Only you need to solve some derivatives and some limits part. Okay. So, do you know what are the different types of indeterminate forms? कितने types हैं? आपने 11th-12th में पढ़े थे? सर 0 by 0. Yeah, 0 by 0 is one of the type of indeterminate form. Infinite by 0 infinite. ऊपर भी 0 है तो वो Infinite by infinite. indeterminate means we can't 0 by determine. infinite. It is indeterminate. by infinite. Infinity by infinity. Infinity by infinity. Yes sir. This is Infinity the- by 0 over infinity. 0. These are the 0 two by standard infinity. form that you have studied. आपने 11th-12th में Sir, ये पढ़े, 1 to the power infinity. right? 0 by 0. 0 by 0 0 लिया ना? times infinity. Yeah. The next one is 0 by infinity. into 1 to the power infinity. Indeterminate form. Listen, 0 into infinity is another indeterminate form. Okay. और कोई जो 1 to the power 1 infinity. to the power infinity. Sir 1 power one, infinity. yeah, correct. That is also there.
In fact, do you know infinity minus infinity is also indeterminate? Yes, sir. Yes, sir. 1 by infinity, sir. One Infinity plus infinity. infinity 1 plus by infinity. वन बाय इंफिनिटी तो जीरो Sir, हो जाएगा. वन बाय इंफिनिटी इज जीरो. sir, 1/0, 1/0. वन बाय जीरो भी Infinity plus इनफैक्ट एच infinity. बाय जीरो इज इंफिनिटी. 0 raised to 0. हो गया. देयर आर थ्री मोर और तीन है. 0 raised to 0, sir. Yeah, correct. Zero raised to Infinity. zero is also indeterminate form. Infinity One raised to raised zero to is infinity. indeterminate. And in One की fact, power one n. to infinity. One raised. तो ये जो है 7 different indeterminate forms है. This is the first one, 0 by 0. Second is infinity by infinity. Third is 0 into infinity. Then infinity minus infinity. And these are the function raised to function. 0 raised to 0, infinity raised to 0, and 1 raised to infinity. These are the 7 different indeterminate forms. Okay. Basically, these are the two standard one. ये जो है वो standard है दो, 0 by 0 and infinity by infinity. Actually हम क्या करने वाले, ये जो remaining 5 है इनको हम convert करने वाले, either 0 by 0 form में या infinity by infinity form में. Okay. और once you have a 0 by 0 or infinity by infinity form आ गया, once you have this, you can apply L-Hospital rule. Okay, तो आप L-Hospital rule apply कर सकते हो. L-Hospital कहते हैं उसको या L'Hopital rule भी कहते हैं. तो L'Hopital rule कब अप्लाई होता है? L'Hopital rule will be applicable when you have a 0 by 0 or infinity by infinity form. Okay, चलो, तो we are going to see what is L-Hospital rule and how to apply. I hope you remember L-Hospital. याद है सबको? Yes, sir. क्या होता है? तो कब अप्लाई होता है? 0 by 0 फॉर्म आ गया सपोज, तो क्या करोगे? Sir, differentiate करेंगे. डिफरेंशिएट देखो, डिफरेंशिएट करते वक्त कैसे करना है? न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट. सर Yes, उसके sir. बाद उसमें से कॉमन लेंगे. राइट डाउन दैट L-Hospital रूल. वो ऊपर वाले दो प्रॉब्लम लिखे ना सबने, ये सॉल्व करनी है आपको. Sir. लिखे ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन हियर. ये रूल कब अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखो. L-Hospital रूल कब अप्लाई होने वाला है? व्हेनेवर आपके पास 0 by 0 फॉर्म आ गया लिमिट में या infinity by infinity फॉर्म आ गया, then in that case we can't determine the limit value, so that's why it is called as an indeterminate. Okay, but actually L-Hospital rule gives us the idea how to solve that kind of problem. जेव्हा तुम्हाला 0 by 0 किंवा infinity by infinity फॉर्म येणार आहे तेव्हा तो प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा. ओके, तेव्हा you are going to get 0 by 0 form or infinity by infinity. We are going to see to solve that. तळ्याचं चालू करावं लागेल आपल्याला. Okay, fine. So listen, suppose you are having the limit. कांद्याच्या 10 वळी राहिले मागल्या वेळेस. Someone mic is on. Can you put it off? So suppose you are having that limit x tends to a गुंबरीला x upon g of x. And suppose this limit is either 0 by 0 or infinity by infinity आता है अगर. Okay, in that case, what is L-Hospital rule? The rule tells us that this value limit x tends to a f of x upon g of x is same as what? Limit x tends to a f dash of x. पर ध्यान दो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते वक्त क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है आपको. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है ऊपर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है नीचे. दैट इज द रूल. ओके, सपोज ये करने के बाद
इसका भी आंसर 0/0 आया तो फिर से और डिफरेंशिएट एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई कर। फिर से लेने का डबल हाँ। डेरिवेटिव, सेकंड सपोज डेरिवेटिव, उसका भी 0 आया तो थर्ड डेरिवेटिव। ये करते ही पड़ता जब है। तक सपोज बाई चांस ये भी अगर सपोज ये 0/0 आ गया या ∞/∞ आ गया, then you can apply again the L'Hospital rule and you are going to have something like this f double dash upon q. सपोज ये भी आ गया, then one more derivative. सपोज उसके आगे वाला भी आ गया, वो भी one. कब तक करते बैठोगे? Still you will have a finite value. जब तक हमें कुछ फाइनाइट लिमिट नहीं मिलता है तब तक हमें ये अप्लाई करते रहेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग? यस यस सर। समझ में आया रूल क्या कहता है? और रूल अप्लाई कब करना है? जब 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म आ जाएगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल सिंपल है, जो भी कुछ फंक्शन ऊपर है और जो भी कुछ फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ले लो, यू विल गेट द थिंग। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल। सपोज मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ध्यान दो, तो जब मैं 0 डालूंगा, इसमें 0 डालूंगा मींस क्या करूंगा मैं? sin 0 अपॉन 0 हो जाएगा ना ये। 0/0 बट व्हाट इज sin 0? इट इज 0 और नीचे भी 0 आ गया, तो आर वी गेटिंग 0/0 फॉर्म? समझ में आ रहा है सबको? जब मैं लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे, am I going to get a 0/0 form here? Is it? Yes. But 0/0 form, as just now we have seen कि अगर 0/0 form आ गया तो इसका आंसर क्या होता है? कैसे निकालते हैं? 0/0 फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट डेरिवेटिव लेंगे इसका, डेरिवेटिव ले लो, sin x का डेरिवेटिव ऊपर का ऊपर लिखना है, डेरिवेटिव cos x और cos x x का डेरिवेटिव। अभी लिमिट ले लो, अभी x की वैल्यू 0 डालो वापस, जब 0 डालोगे तो ये बनेगा cos 0। So are you going to get cos 0 is 1, 1/1 is 1. So are you going to get the answer as 1? Yes. Finite आ गया ना, finite आ गया, then we'll stop. Okay, समझ में आया सबको? Yes, sir. फॉर्मूला भी मिल गया हमें, देखो दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। रिमेंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज ऑलवेज 1। गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. सर एक डाऊट आहे हाँ बोलो। सर, जर म्हणजे वरची व्हॅल्यू फायनाईट काहीतरी येत असेल आणि खाली 0 असेल तर मग लिमिट घ्यायचं का त्याचं? तर नाही घ्यायचं, 0/0 हे बघा, वर 1 आहे आणि खाली काहीतरी व्हॅल्यू आहे, सपोज लिसन, वर 1 आहे आणि खाली काय आहे? 0 ना? हो सर. हा इंडिटरमिनेट फॉर्म आहे का या किंवा या टाइपचा आहे का? म्हणजे हा पण टाइप नाहीये आणि हा पण टाइप नाहीये ना, तो 1/0 इज नॉट ऑफ दिस काइंड, नॉट ऑफ दिस काइंड, राइट? मी काय सांगितलं, एल हॉस्पिटल रूल कधी वापरता येतो आपल्याला? व्हेन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगर आपके पास 0/0 है या ∞/∞ है, देन ओनली आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, ध्यान दो, 1/0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। द वैल्यू ऑफ 1/0 इज इंफिनिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/1? 0. एनी अदर डाउट? नो सर. चलो नेक्स्ट, अभी और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इसको मैंने उल्टा किया तो क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, व्हाट डू यू थिंक? वापस 0/0 0/0 आएगा ना? यस सर, 0/0। Yes. हाँ सर। तो वापिस आप क्या करोगे? वापिस सेम डेरिवेटिव लोगे, तो इज इट 1/cos x और वापिस इसका आंसर बनाने वाला है, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x हो या sin x अपॉन x हो, दोनों का आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। आर यू गेटिंग द थिंग? Yes, sir. दिस वैल्यू इंपॉर्टेंट,
This value is important. Depend on 0. I am telling about only 0. When x tends to 0, जब x value 0 ले रहा है, x tends to 0, then sin x upon x and x upon sin x both are is equal to 1. Clear, all of you? Yes, sir. Third. Yes, sir. Suppose if I have limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x. इसका लिमिट मुझे निकालना है. क्या करोगे बताओ? चलो 0 डालो. क्या होगा 0 डालोगे तो? Are you going to get 0 by a 0. minus 1 upon 0 by 0. तो a raised to 0 1 होता है. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, 1 sir. minus 1 तो ये 0 by 0 आने वाला है. देखो आगे. Yes, sir. Right? So अगर ये 0 by 0 आ रहा है तो क्या what I have to do? I have to take the limit. I have to take the derivative by using L'Hospital. तो a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? A raised to x log. इसी के A raised to raised x log. log a. और -1 का तो 0 हो जाएगा और इसका 1 और अभी 0 डालो. x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो am I going to get the answer as simply log a because a raised to 0 Yes, 1 हो जाएगा. 1 हो गया. Yes. Okay. So your answer will be log a. Are you getting? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, Now sir. simply if I do limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x, can you tell me the answer? Directly a की जगह e डाल दिया देखो. So is it log e? 1 answer. Well, it will be Yes, 1. Yeah, correct. ये आ रहा है क्या? Is it simple? कुछ नहीं है. ये फॉर्मूला जस्ट मैं छोटे-छोटे बता रहा हूँ आपको. लिमिट x tends to 0. Suppose tan x upon x है. क्या आएगा डेरिवेटिव? क्या आएगा लिमिट? 1. नहीं आने वाला है इसका भी. You can check No. out. tan x का हो जाएगा 1 sec आएगा. square x और x का हो जाएगा 1, right? और sec Yes, 0 sir. 1 होता है. Yes, sir. ये 1 आने वाला है आंसर. Can I say limit x upon tan x भी 1 ही आएगा? 1. ओके चलो ये ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस. और एक मुझे बताना है a raised to x इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना सर ऊपर का भी. चलो ऊपर का भी लिख लें. पड़ेगा. बट बिफोर दैट आई विल जस्ट राइट डाउन वन मोर. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to 1 upon x. इसकी वैल्यू किसी को याद है? दिस वैल्यू विल बी e. हम ये सॉल्व करेंगे. चाहिए ओके राइट डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग एवरीवन. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, meanwhile I will take the attendance. Just let me know once you're done. I will scroll it down.